السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بھی میری طرف سے سلام عرض ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، آپ مجلس کو بی ٹیم کہنے والوں ایک بات سمجھ لو، غور سے سن لو یہ بات۔ اس کے بعد میں کبھی یہ بات بتاؤں گا بھی نہیں اور اس کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ اے مجلس کے دیوانوں، آپ کو خوشی کی خوشخبری ہے۔ اے مجلس کو غلط سمجھنے والوں، آپ کا بیڑا پار ہونے والا ہے ابھی، کیونکہ یو میں 65% ون ٹرن ون آف دا ویک ان 15 days 65%، سمجھ گئے؟ 65% جو ہے اسد صاحب کو وہاں کی پبلک، وہاں کی عوام چن چکی ہے، سن چکے ہے، دیکھ چکی ہے۔ اور رہی بات باقی، کل کی ویڈیو میں بتایا تھا اپنے آدتیہ ناتھ یوگی کو 44,000، اگلے شرما جی کے لیے 6 لاکھ، اور سنجے سنگھ کے کل 4.5 یا 5 لاکھ، اور جو ہے مایاوتی کے 2 یا 3 ہوں گے۔ کل میں نے بتایا تھا، وہ جو مختصر باتیں کی تھی جب وہ آنے والے تھے، لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا میں۔ اور میرے شیر دکن، میرے شیر ہندوستان اسد الدین اویسی کو 14,07,000 سے بھی 70,000 سے بھی زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں، ان کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ نیوز 24 نیشنل چینل ہے جو الگ الگ طریقے سے الگ الگ شخصیتوں کو بلوا کر انٹرویو لیا گیا، تو ایک ہفتے میں 2 بار انٹرویو ہوتا گیا، تو 15 دن میں 4 انٹرویو کے بعد معلوم پڑا، رزلٹ آیا، فیصلہ آیا، تو 14,70,000 لوگوں نے اسد صاحب کو سنا ہے اور دیکھا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جو بھائی لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں وہ ذرا اللہ سے ڈریں۔ آج کل کا نوجوان بھٹک رہا ہے، اسے سچی راہ دکھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، مگر اپنے گھروں میں کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے گھر سے شروع کریں، اور محلوں میں، پھر گاؤں، شہر، سٹیوں میں۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت غصے میں ہوں، کیونکہ ایک سچے مرد مجاہد کو غلط کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں انف شنف بکے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بات بتائیے کہ ٹیپو سلطان کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ کیا ریلی نکالے ہیں اتنی میں، کیوں آپ کو بی جے پی پسند نہیں؟ کانگریس پسند ہے، جے ڈی ایس پسند ہے، مگر بی جے پی کو بھی آپ ووٹ دیے، کانگریس کو بھی دیے، جے ڈی ایس کو بھی دیے۔ صرف اور صرف یہ جو بھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ کانگریس جو ہے بہت اس میں سازشیں رچی ہے۔ چلو مختصر سے بات بتاتا ہوں آپ کو، ایک مثال کے طور پہ۔ حال ہی میں نے جب شروع کیا مجلس کا کام کرنا، تو تب جو ہے مجھے پتہ چلا 1946 میں، جب بی جے پی تو نہیں تھی، صرف کانگریس تھی، اے آئی سی سی، تو 1946 میں جب ان قریب آزادی کے وقت یہ آر ایس ایس کا بیج جو بویا ہے، وہ کانگریسیوں نے بویا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا پروف بھی دو بولے تو میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، کانگریس کے بعد آر ایس ایس نے جو پیدا کیا فتنہ پرستی جو پھیلایا ہے آر ایس ایس نے، پہلے سنیے، بی
बी जे पी से सब बढ़ कर के जो है जाए बजरंग दल, हाँ, जो शिवसेना, जो जितने भी वी एच पी जितने भी हैं, ये उनकी टीम बनाते गए। जी समझे। और 65 सालों में हमारे साथ क्या किया इन लोगों ने। हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन दी है, हमारे बच्चों को कुछ तालीमात के लिए एक अलग अलग खर्चा करके हो या गरीबों के लिए हो अस्पतालें खोले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अबू कलाम आज़ाद मौलाना के लिए कुछ थोड़ा बहुत कहा जाता है, जो कि कुर्बानियाँ ज़्यादातर दिए हैं आज़ादी के लिए मुसलमान और दलित भाई। मैं साबित कर रहूँगा। जो भी आप मुझसे सवाल पूछना चाहेंगे दीनी तौर पर या दुनियाई तौर पर, तो मैं इससे तैयार हूँ। समझ ले। तो एक अनपढ़ एक गंवार जो है वो अल्लाह को डरता है। कैसे? उससे इल्म नहीं होता कि अल्लाह को डरता है वो। मैं ये किया तो ये होगा, मैं ये किया तो वो होगा, इसीलिए जो है वो खामोश रहता है। उसी की खामोशी बयां करती है कि सब सामने वाले को बड़ा बनाने पर। भाइयों, आप अनपढ़ नहीं हो, बस कलमा पढ़े हैं ना, ठीक है, बस गुज़र अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये जो समझ कर जानकर इल्म को जानने वाले हाफिज़, आलिम, मुफ्ती, कारी, मौलवी, मौजज़ी जितने भी हैं, इनके पास इल्म भी है, इल्म के दास्तां भी हैं, और इल्म के साथ साथ दुनियादारी का भी पता है। तो वो खुद खुदा से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक अलग ट्रैक, अलग दिमाग में फिट किए हैं। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरानें पढ़ते हैं, जो भी बाहर गुनाह हो अल्लाह ताला माफ़ करता है। चलो भाई, वो तो देखा जाएगा रोज़े महशर में कि कौन जीता और कौन हारा। और एक बात, मेरे काम में बाधा मत डालिए, मेरे काम में मत आड़े आइए। जी, मैं अपने इस्लाम और मज़हब के लिए और मेरे हिंदुस्तान मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी का मतलब आप समझ लो। आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा उस वक्त का था जब एक बदखार मेरा दोस्त कहलाया जाता था, उसने जब 15 से 17 लोगों को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया। जब मीटिंग थी, तेरा शुक्र अदा करना चाहूँगा क्योंकि तू उनको लेके गया, इधर 15, 17 से 70 बन गए। ये तो मेरी ये तो मुझे खुश नसीबी है कि तू लेके भाग गए। देखेंगे वो तो फिर ऐसी बात है। तो अल्लाह को डर कर ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, लेकिन वैसे साहब के काम में दखल अंदाजी भी मत कीजिए, उन्हें गलत सलत भी मत कहिए। अगर बीजेपी आपको इतनी पसंद नहीं है और कांग्रेस पसंद है, तो सुनिए बात, कांग्रेसियों ने क्या किया है जो अपने हाथों से काम नहीं हो सके, वो बीजेपी से करवाया है। समझ लिए आप। इन 10 सालों में जो हुआ है, 8, 9, 10 सालों में, ये सब साजिश कांग्रेसियों की है। क्योंकि वो अगर फ्रंट पर आकर काम करती तो अपनी आवाम की नज़रों में गिर जाती, और वोट बैंक जो मुसलमान हैं उनको वोट नहीं करते। इसीलिए जो है ये सब साजिश रची गई है। समझ लीजिए, जो जितने भी आज बीजेपी ने काम किया है वो सब कांग्रेसियों ने ही लिखा था। उनके सामने ना आने से और उनके पीछे काम भी हो गया, उनका मकसद भी पूरा हो गया। जी, जब हमारे शरीयत में दखल अंदाज़ी दिए तो तब कोई कांग्रेस वाला बोला देश छोड़कर चले जाओ का नारा लगाने वालों। अरे ईमान वालों, ज़रा सोचिए, कांग्रेस ने कुछ किया? अरे आरएसएस का बीजी बोआ है कांग्रेस ने। आरएसएस को पैदा करने वाली का नाम ही कांग्रेस है। आप क्यों नहीं समझ रहे?
ठीक है, मत समझिए, लेकिन जो अल्लाह ताला को पसंद है वो काम करिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे काम में दखल अंदाज़ी मत दीजिए, दखल अंदाज़ी मत दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मजबूर होने पर मुझे कोशिश मत करिए। एक बात बताता हूँ, हाल ही में जब हमारी मीटिंग थी तब दूसरे दिन या उसी दिन नहीं, दूसरे दिन दोपहर में एक शख्स फ़ोन किया, कहा हम या फलां फलां जगह, तो तुम रुकना, मैं आ रहा हूँ। तो बोला तू कहाँ है? बोल मैं वहाँ आ रहा हूँ। नहीं मैं यहीं हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, आ गया तो मेरा फ़ोन नंबर लेकर चला गया। दूसरे फ़ोन लगाया था वो, और मेरा फ़ोन पर्सनली लेकर, एक नंबर पर्सनली है वो नंबर लेकर चला गया। चले जाने के बाद पूछता है, भाई आपको कितना पैसा मिल रहा है? आपको कितना पैसा मिल रहा है? अरे पैसा मिल रहा है, पैसों के लिए अगर मैं काम कर रहा होता। अरे हरामी, अब तुझे क्या बताऊं, जिस दिन मीटिंग थी उस वक्त मेरे भाइयों को, चंद भाइयों को पता है कि मैं क्या था। मैं बता नहीं सकूँगा, ये मेरी इज़्ज़त खुद निकाली जाएगी। फिर भी लो, तुम्हारे लिए कहता हूँ बुज्जिल, मेरे पास उस वक्त 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी मैंने हार नहीं माना। क्यों? मुझे मेरे मालिक व खालिक अल्लाह पर भरोसा है। हुज़ूर करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर मुझे फ़ख्र है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या रहे हैं? सब कुछ हो गया, ये हुआ वो हुआ। मीटिंग के बाद ये तो कांग्रेसियों को अपोज कह रहे हैं, ये बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, बीजेपी को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। अब कांग्रेसियों ने तो आपको क्या साथ दिया? सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? तो सुन लीजिए गौर से, मंजिल बहुत करीब है। शुरुआत यूपी से हुई है और ख़त्म कर्नाटक होगी। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि फिर से हुकूमत हमारी होगी। आप जैसे रहेंगे तो नहीं होगी। कौन आप जैसे? जो पैसे खाने वाले हैं उन जैसे। तो 1 लाख 2 लाख रुपए का मुझे लालच भी दिया गया, ये हट बोला मैं, तब मैं नहीं ले सकता था पैसे, नहीं ले सकता था। अरे मेरे घर में मेरे घर वालों को मैंने अपनी दूसरी जगह शिफ्ट किया, मैं अकेला हूँ। क्यों? मैं अकेला परेशानी का मुकाबला करने तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को भी तकलीफ़ ना पहुँचे, मैं भेज दिया हूँ। ठीक है। और जो ईमान बेचने वालों, समझ लो, उन पैसों से क्या तुम ख़रीद पाओगे अपने ही कफन को? नहीं ना। क्या खुदवाओगे अपनी कब्र को अपने पैसों से, खुद हाथों से देकर? ज़रा सोचिए भाइयों, सोचने की बात है ये। देखिए जो कुछ भी चल रहा है, थोड़े बहुत ऐसे मौलवी मुल्ले हैं जिनकी वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है। कौम के लिए काम करना है, बराए मेहरबानी कौम के लिए काम कीजिए। ठीक है। तो मैं एक शायराना अंदाज में आपको बताकर बात ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी आज कहीं और जाना है बड़ी बोर्ड मीटिंग में। तो थोड़ा फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर होने की वजह से अब तक काम नहीं हो पाया। इंशाल्लाह आगे हो जाएगा जी, आगे हो जाएगा इंशाल्लाह। आज मैं जा रहा हूँ गुलबर्गा, वहाँ अपने आएंगे उस्मान गनी साहब, कल सुबह तक रहेंगे, बातचीत होगी। उसके बाद बोर्ड फैसला करेगी कि असद साहब कब आएंगे या नहीं आएंगे। और एक बात, जितने गलियाँ, जितने वार्ड हैं, उन वार्ड में अपने जो मजलिस को चाहने वाले हैं, एक एक ग्रुप बनाइए अपना, गलियों में एक एक ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप में इतने लोग ऐड कीजिए। जो पूछताछ करिए, जो आपको पसंद है मजलिस तो ले लीजिए, नहीं है तो ज़बरदस्ती मत करिए। क्योंकि
ایسا اگر فارورڈ کرتے گئے تو انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے. اب سمجھو مثال کے طور پر ایک گروپ بنا دیا کہاں کی اے پی ایم سی کی. یہ گروپ کا ایڈمن وہ کسی کو بھی لنک نہیں کرے گا سوائے مجھے پوچھے جی. تو وہ اپنی ایک جو گلیوں میں محبت مجھ سے کرتے ہیں وہ ایک گروپ بنا لو. پھر مجھے بتا دو کہ اے بھائی یہ گروپ کا نام کیا رکھنا ہے, یہ گروپ کا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں صاحب سے بات کر کر آپ کو بتا دوں گا. اب آلریڈی 3 تو ٹیم ہو چکے ہیں, بس ابھی کچھ اور باقی ہیں. میں دعا کی درخواست کرتا ہوں. اور ایک جو شاعرانہ کی بات بتا رہا تھا وہ بھی بات بتانا چاہوں گا, کیونکہ بھی آپ ناراض بھی ہو جائیں گے. نہیں تو یہ بتایا آدھا سارا بول کے چلا گیا. اپنے ایک ہی بات پر غور کریے, اس بات کو جو سمجھے گا اپنی دنیا ہی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. سنیے میں کہنا چاہتا ہوں